تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے واضح کیا ہے کہ حکومت مصنوعی ذہانت کے استعمال اور تحقیق کو فروغ دینے اور AI ماحول پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی مصنوعی ذہانت کانفرنس جمعرات کو حیدرآباد کے HICC میں شروع ہوئی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزیر IT ڈی سریدھر بابو نے کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے واضح کیا ہے کہ حکومت مصنوعی ذہانت کے استعمال اور تحقیق کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ AI شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد میں بنائے جانے والے چوتھے شہر میں 200 ایکڑ کے رقبے میں ایک AICT قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ شروعات ریل انجن اور فوٹو کیمرہ بنانے سے ہوئی تھی اور اب یہ AI تک پہنچ گئی ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد MP بیرسٹر اسد الدین اویسی وقف ترمیمی بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے تیسرے اجلاس میں شرکت کے لیے دہلی پہنچے۔ وقف ترمیمی بل 2024 پر غور کرنے کے لیے تشکیل دی گئی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے جمعرات کو پارلیمنٹ کے احاطے میں تیسرا اجلاس منعقد کیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد MP بیرسٹر اسد الدین اویسی جو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے رکن ہیں، اجلاس میں شرکت کے لیے قومی دارالحکومت دہلی پہنچے۔ آپ کو بتا دیں کہ اجلاس میں مختلف وزارتوں کی جانب سے کئی ایجنڈے پر پریزنٹیشنز بھی دیے گئے ہیں۔ خیرتآباد گنیش اتسو کمیٹی کے اراکین نے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا سے ملاقات کرتے ہوئے گنیش نوراتری کی تقریبات میں مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہونے کی دعوت دی ہے۔ خیرتآباد گنیش اتسو کمیٹی کے چیئرمین و خیرتآباد MLA دانم ناگیندر کی قیادت میں کمیٹی کے اراکین نے جمعرات کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی رہائش گاہ پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور گنیش نوراتری تقریبات میں شرکت کی دعوت دی۔ بعد ازاں MLA دانم ناگیندر خیرتآباد گنیش اتسو کمیٹی کے اراکین اور پجاریوں کے ہمراہ پرجا بھون پہنچے، جہاں پر انہوں نے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا سے ملاقات کی اور گنیش نوراتری تقریبات میں بطور مہمان خصوصی اپنے افراد خاندان کے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دی۔ IBM کی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی ایڈوکیسی کی نائب صدر ڈینیلا کومبے نے اپنی ٹیم کے ساتھ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ شہر حیدرآباد کے HICC میں عالمی مصنوعی ذہانت کانفرنس کے دوران AI کے مستقبل اور نئی اختراعات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ڈینیلا کومبے اور ان کی ٹیم نے چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات خطے میں تکنیکی ترقی اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے اہم سمجھی جا رہی ہے۔ وزیر IT ڈی سریدھر بابو و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے کھمم کے سیلاب متاثرین کے لیے سامان روانہ کیا۔ بارش کی وجہ سے کھمم اور محبوب آباد شدید متاثر ہوا ہے۔ سابق وزیر و BRS کے سدی پیٹ MLA ہریش راؤ نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سامان روانہ کیا۔ انہوں نے سدی پیٹ کے MLA کیمپ آفس میں سامان لے جانے والی گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر MLA نے کہا کہ BRS کے اراکین اسمبلی، اراکین پارلیمان اور اراکین کونسل کی ماہانہ تنخواہ سیلاب متاثرین کو عطیہ کی جا رہی ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ سب کو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے جن لوگوں کے گھر پانی میں ڈوبے ہیں ان کو 2 لاکھ روپے کی امداد دینے کا کانگریس MLA کومٹی ریڈی راج گوپال ریڈی نے شراب کی دکانات بند کر دینے پر گاؤں والوں کو اعزاز سے نوازا۔ منگوڑو کے کانگریس رکن اسمبلی کومٹی ریڈی راج گوپال ریڈی نے اپنے کیمپ آفس میں گاؤں والوں سے ملاقات کی، جنہوں نے MLA کی ہدایت کے مطابق شراب کی دکانات مکمل طور پر بند کروائی ہیں۔ انہوں نے گاؤں کے کمیٹی ممبران کی شال پوشی کی اور گاؤں کی ترقی کے لیے فوری طور پر 10 لاکھ روپے کے فنڈز بھی منظور کیے۔ حضور آباد کے BRS رکن اسمبلی پی کوشک ریڈی نے کانگریس حکومت پر پولیس افسران کے بشمول BRS MLAs کے فون ٹیپ کرنے کا الزام لگایا۔ کریم نگر ضلع کے جمی کنٹا میں MLA پی کوشک ریڈی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس حکومت پر پولیس افسران اور BRS MLAs کے فون ٹیپ کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوامی مسائل کو نظر انداز کر
फोन टैपिंग जैसी सरगर्मियों में मुलविस हो रही है। पी कौशिक रेड्डी ने मुतालबा किया है कि मरकजी वजीर बंडी संजय के फोन टैपिंग मामले की CBI इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए। उन्होंने किसानों के कर्ज माफी को लेकर भी रियासती हुकूमत पर जमकर तनकीद की और कहा कि तमाम किसानों के कर्ज माफ करने चाहिए। साबिक वजीर जी निरंजन रेड्डी ने रियासती हुकूमत को अपोजिशन को डांटने के लिए एक वजीर का तकर्रुर करने की तजवीज़ पेश की है। BRS रहनुमा व साबिक वजीर जी निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रियासती हुकूमत पर जमकर तनकीद की और अपोजिशन के कायदीन को डांटने के लिए एक वजीर मुकर्रर करने की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस को BRS से बेहतर काम करने का मौका दिया, लेकिन झूठे वादे करते हुए इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। निरंजन रेड्डी ने मिशन काकतिया में तालाब ठीक से न बनाने के BRS पर लगाए गए इल्जामात पर रियासती हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि हुकूमत की मनसूबाबंदी न होने की वजह से वाटम पंप हाउस ज़ेरे आब आ गया है और हुकूमत अपोजिशन को निशाना बनाकर अपने वादों से तवज्जो हटाने का काम कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत ने अवाम से जो वादे किए हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ तेलंगाना एम्प्लॉइज गेजेटेड ऑफिसर्स, टीचर्स, वर्कर्स एंड पेंशनर्स ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुलाजमीन की एक दिन की तनख्वाहें अतिया करने का ऐलान किया है। TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी विक्रम, एसोसिएट प्रेसिडेंट राजकुमार, खजांची बालराज व दीगर ने हिस्सा लिया। TNGOs हैदराबाद जिला सदर SM हुसैनी मुजीब ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 205 यूनियनों पर मुश्तमिल तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के सदूर और सेक्रेटरीज ने रियासत में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से होने वाले जानी व माली नुकसान को मद्देनजर रखते हुए मुलाजमीन की एक दिन की तनख्वाहें सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया करने का ऐलान किया है। रकम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकारी मुलाजमीन हमेशा रियासती हुकूमत के साथ रहे हैं और इस सिलसिले को जारी रखते हुए हुकूमत का साथ देने और मुतासरीन की मदद करने का फैसला किया गया है। TNGOs हैदराबाद सदर ने कहा कि JAC के तमाम अरकान ने महबूबाबाद जाकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को रकम अतिया करने से मुताल्लिक़ एक याददाश्त भी सौंपी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने TNGOs का शुक्रिया अदा किया और TNGOs के इस इक़दाम की भी हौसला अफजाई की। उन्होंने बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से भी इस सिलसिले में मुलाकात की गई। उन्होंने भी TNGOs के इस इक़दाम को सराहा है। SM हुसैनी मुजीब के मुताबिक कल यानी 6 सितंबर को इस सिलसिले में एक GO जारी किया जाएगा। यौम-ए-असातिज़ा के मौके पर हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर और जिला कलेक्टर अनुदीप द्रोशिटी ने असातिज़ा की खिदमात को सराहते हुए उन्हें अवार्ड से नवाजा। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम बशीरबाग भारतीय विद्या भवन ऑडिटोरियम में यौम-ए-असातिज़ा की तकरीब मुनक़िद की गई। वज़ीर पूनम प्रभाकर तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी रहे। उन्होंने असातिज़ा को यौम-ए-असातिज़ा की मुबारकबाद पेश की। दरियासना जिला कलेक्टर अनुदीप द्रोशिटी के साथ असातिज़ा को तहनीत पेश करते हुए उन्हें अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने अवार्ड हासिल करने वाले तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वालिदैन के बाद असातिज़ा ही हैं जो कि काबिले एहतराम होते हैं। उन्होंने तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने यौम-ए-असातिज़ा की तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम में DEO रोहिणी, मुकामी कॉरपोरेटर सुरेखा, RDO माहिपाल, तहसीलदार प्रेम कुमार, डिप्टी EO, डिप्टी IOS, HM असातिज़ा वो दीगर ने हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में बिजनेस लीडर्स समिट के दौरान कहा कि हिंदुस्तान की सरकार तरक्याती पॉलिसियों के साथ आगे बढ़ रही है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पाया जाता है। वज़ीर आज़म मोदी ने सिंगापुर में मुनक़िद बिजनेस लीडर्स समिट में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि हिंदुस्तान की सरकार तरक्की पसंद पॉलिसियों के साथ आगे बढ़ रही है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पाया जाता है। सेमीकंडक्टर्स के शोबे के हवाले से उनका कहना था कि सेमीकंडक्टर्स का शोबा जारहाना अंदाज में आगे बढ़ रहा है और उस सेक्टर में एक पूरा माहौलियाती निज़ाम तश्कील देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान और सिंगापुर ने जुमेरात को अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक जामे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की शक्ल देने के साथ साथ 4 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें दोनों ममालिक के दरमियान डिजिटल टेक्नोलॉजी,
सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप, सेहत और अद्वियात, तालीमी ताउन और महारत की तरक्की शामिल हैं। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मिना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई ta 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अक़साम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। अवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में मियारी बरखी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने नायब वज़ीर आला भट्टू विक्रमार्का और दीगर आला अहदेदारों के साथ महकमा बरखी की सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। रियासत में आवाम की ज़रूरियात और बरखी के शोबे के मुताबिक उठाए जाने वाले इक़दाम के बारे में मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की गईं। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने यौम असातिज़ा के मौके पर रियासत के तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तक़बिल को संवारने का काम असातिज़ा करते हैं। इस मुल्क के असासे और रियासत तेलंगाना के असासे के मुस्तक़बिल की तश्कील की बड़ी ज़िम्मेदारी असातिज़ा पर आयद होती है। जिला गुंटूर में जेवरात की दुकान में बड़े पैमाने पर चोरी की गई, ताहम फरार होने की कोशिश के दौरान एक चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई। इस चोर का ताल्लुक राजस्थान से है। इसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। गड्डी मलकापुर तरकारी मार्केट और फ्लावर मार्केट में सीवरेज का पानी बहने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक ये पानी साल भर बहता रहता है, जिससे यहाँ पर कारोबार करने वाले अफराद और यहाँ पर आने वाले आवाम को मसाइल का सामना है। फूड सिक्योरिटी के अहदेदारों ने हबशीगुड़े के एक होटल पर धावा किया, जहां स्टेट लाइसेंस के बजाय रजिस्ट्रेशन के जरिए होटल चलाई जा रही थी। साथ ही पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड भी नहीं पाया गया। दीगर खिलाफ वर्जियों का भी इस धावे के दौरान पता चला। सैलाब मुतासरीन के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में रकम जमा करवाने की सहूलत फराहम की गई है। बज़रिए ऑनलाइन बैंकिंग, चेक की शक्ल में या फिर ऐप्स के जरिए QR कोड को स्कैन करते हुए रकम भेजी जा सकती है। अतापुर पुलिस ने राशन के चावल की स्मगलिंग करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सुलेमान नगर के एक गोदाम में गैर कानूनी तौर पर रखे गए 4 कुंटल राशन के चावल को पुलिस ने धावा करते हुए जब्त कर लिया और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकामी आवाम ने अतापुर पुलिस और चाइल्ड लेबर हुक्काम से चावल की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलुगु देशम के रुकन असम्बली ओडेलम ने उसकी इस्मत रेज़ी की। इसने इंकिशाफ किया कि इस मामले को पहले ही वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और उनके फर्जंद लोकेश के इल्म में लाया गया था। इस खातून ने कहा कि उसकी जान को ख़तरा है। इसने कहा कि अगर वज़ीर आला ने इस मामले पर फौरी रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया और उससे इंसाफ नहीं किया तो वो तेलुगु देशम के दफ्तर के सामने खुदकुशी कर लेगी। रियासती वज़ीर सीतक्का ने मुल्क में 500 एकड़ अराजी पर दरख्तों की कटवाई पर अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने दरख्तों की कटवाई की वजह से होने वाले मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया और इन दरख्तों को काटने के मामले की तहकीकात की भी हिदायत दी। HICC में मसनवी ज़हानत पर कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर मसनवी ज़हानत के इस्तेमाल के फ़ायदों और इसको रूबे अमल लाने पर जोर दिया। आरामघर चौराहे के करीब पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा बारिश के दौरान कल शब उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार खानगी बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस उलट गई। इस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहाँ जमा हो गई। इस हादसे की इत्तला पर एम्बुलेंस वहाँ पहुँची, जिसने ज़ख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया।
बासर ट्रिपल IT के तलबा ने एहतजाज किया। इन तलबा ने रेगुलर वाइस चांसलर के तकर्रुर का मुतालबा किया और उनको दरपेश मसाइल के हल पर जोर देते हुए रैली निकाली। उन्होंने उनके मसाइल फौरी तौर पर हल करने पर जोर दिया। जिनूर में पेश आए वाक़े के लिए गुमरम भीम के मुजस्समे के करीब धरने में दी गई इश्तियाल अंगेज़ तकारीर जिम्मेदार हैं। पुलिस ने इन तकारीर पर कोई नोट नहीं लिया और ना ही कोई कार्रवाई की, जिसके बाद ये वाक़यात पेश आए। इन तकारीर में खातून पर जिनसी हमले के लिए इस वाक़े के लिए पूरे मुस्लिम तबके को जिम्मेदार ठहराया गया था। सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी YS शर्मिला ने सैलाब से मुतासिरा सिंह नगर विजयवाड़ा का तफसीली दौरा किया। उन्होंने बाद अज़ां कहा कि रियासती और मरकज़ी हुकूमतों को चाहिए कि वो सैलाब से मुतासिरा इलाक़ों के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। वज़ीर आज़म मोदी का सिंगापुर का दौरा जारी है। ज़राए के मुताबिक मोदी ने पार्लियामेंट हाउस सिंगापुर में सिंगापुर के वज़रा से मुलाकात की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।